श्री श्री कृष्ण बलराम की श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे It's okay? So you are all welcome at Sri Sri Krishna Balaram Temple, ISKCON, Bunake for Sunday Love and Trust Feast. Srila Prabhupada ki jai. So please, Hare Krishna, Hare Hare. Jai Jagannath. So please repeat after me. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gauratveshe Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Very glad to be again with the devotees at Krishna Balaram Temple, and we are grateful to Sriman Sri Niketan Prabhuji and the Kalanath Prabhu and whole team who has given us opportunity today in a love and trust feast to address you great devotees today, and I'm thankful personally to Shamrupa Prabhu who has made all these programs here happening. He has organized everything. So today we will discuss from Bhagavad Gita as Bhagavad Gita has appeared here. So Sunday feast, Srila Prabhupada said, love and trust feast. So love of Krishna is in everybody's heart. Krishna prema nitya siddha sadhya kabhu nahi.
The love of God, love of Krishna is nitya, means every day, every time, eternally. Siddh means completely ready. Sadhya kabhu nahi. Sadhya means you have not to practice to do anything. It's already there. So Srila Prabhupada was convinced that love of Krishna is in every living entity's heart. Therefore he said, in America and Europe, I simply made them to chant Hare Krishna and hear the Krishna Katha, and their love awakened automatically. If it would not have been there, how could they have become devotees? It's a very, very important point, that all the living entities, maybe American, European, Chinese, Russian, but Krishna as a super soul in everybody's heart, and love of Krishna is in everybody's heart. It needs to be awakened only. Somebody has to awaken it. क्या? कुछ लोग बाहर बैठे. हरे कृष्णा. और साथ में हिंदी में आपको बताएंगे कि रविवार के प्रोग्राम को श्रील प्रभुपाद ने कहा प्रेम और विश्वास का उत्सव है. तो प्रेम किससे? सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रेम भर के भेजा है. कोई हृदय खाली नहीं है. इसी बात को प्रभुपाद जी कहते थे कि अमेरिका के लोगों में अगर कृष्ण प्रेम नहीं होता तो मैं उनको कृष्ण भक्त कैसे बना सकता. अफ्रीका के लोगों में कृष्ण प्रेम नहीं होता तो मैं कृष्ण भक्त कैसे बना सकता. इसका मतलब कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है, बस उसको जगाना है. सो वन थिंग इज कृष्ण प्रेम. सेकंड थिंग इज विश्वास. विश्वास मीन्स ट्रस्ट. लव एंड ट्रस्ट फीस्ट. ट्रस्ट किसके ऊपर करना है? विश्वास किसके ऊपर करना है? वी हैव टू ट्रस्ट ऑन व्हाट? There are three types of devotees in all the scripture: Kanishta, Madhyam and Uttam. First class, second class and third class. प्रभुपाद said 3 प्रकार के भक्त हैं. नए भक्त, मध्यम वर्ग के भक्त और उत्तम भक्त. इनका क्राइटेरिया क्या है? किसी को उत्तम कैसे कहेंगे? शास्त्र अनुस्वारी. जितना आपका, as much as you have faith and trust in the scripture, that much you are advanced in your devotion. तो ट्रस्ट किसके ऊपर करना है? शास्त्र के ऊपर. ये है शास्त्र. ये शास्त्रम इदम गीता शास्त्रम इदम ये पठे प्रियत पुमान विष्णु पदम वापनोति भय शोकादि वर्जिता. गीता महात्म में लिखा है. गीता शास्त्र है. इट इज शास्त्र. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शास्त्र? शास्त्र, शस्त्र, शिष्य, शासन. 4 words. Shastra means scripture. Sasan means government. Shastra means weapon. And Shishya means disciple. All has a one root: to be disciplined. Disciple means discipline. Why we have weapon? To discipline people, law and order. Why Shastra? To discipline people on a right path. So the scripture is to discipline people. शास्त्र हमारे को सही रास्ते के ऊपर चलाने के लिए है. और गीता शास्त्र है. गीता शास्त्र. गीता शास्त्रमिदम ये पठे प्रियत पुमान. ये शास्त्र है. कोई भाग्यशाली इसको पढ़ेगा. विष्णु पदम वापनोति. भगवान श्री कृष्ण के चरणों का प्राप्त करेगा. विष्णु जो सर्वव्यापक है. विष्णु का अर्थ है सर्व वसते सर्वत्र इति विष्णु. जो सब जगह है. विष्णु कहाँ है? कहाँ है? ये प्रहलाद महाराज को पूछा था हिरण्याकश्यप, तेरा भगवान विष्णु कहाँ है? बोला सब जगह है. बोला खंभे में? बोला खंभे में भी है. सो विष्णु का मतलब सब जगह. सो लव, प्रेम किससे करना है? वी हैव टू लव कृष्ण.
Love Krishna. Trust the words of Krishna, भगवत गीता. प्रेम कृष्ण से करो, कृष्ण के वचन जो भगवत गीता में है इसके ऊपर विश्वास करो. आप दो काम करो, इसीलिए यह रविवार का सत्संग रखा गया था. कृष्ण के प्रेम और कृष्ण के वचनों के ऊपर विश्वास. और विश्वास सबके अंदर है. द फेथ, श्रद्धा मयो अयम पुरुष, भगवत गीता में लिखा है. इट्स द वर्स ऑफ द भगवत गीता. श्रद्धा मयो, श्रद्धा मीन्स ट्रस्ट, फेथ. मयो मीन्स फुल ऑफ. अयम पुरुष, दिस ह्यूमन बीइंग इज फुल ऑफ फेथ. He has faith. Everywhere he has a faith. सब जगह विश्वास है. हम कभी बोलते हैं, अब बाल कटवाने जाते हैं, यू गो टू दी बार्बर, बाल कटवाने के लिए. हाँ, साथ में कैंची है, उसके हाथ में शार्प नाइफ है. वो कहता है हेड नहीं है, बेंड योर हेड, सर नीचे करो. आप ऐसे बैठते हो और वो इधर करता है. आपको विश्वास है काट नहीं रहा है, मुझे सुंदर बना रहा है. You think it's not cutting our throat, is making us look beautiful. हाँ? बाल ऐसे खींच के निकालते हैं. हाँ हाँ, हमें अच्छा बना रहा है, गुड गुड गुड. सो ये विश्वास है. दिस इज ट्रस्ट. फ्लाइट में बैठते हैं रात को, पूछा है कभी पायलट है कि नहीं है अंदर? Have you ever asked there's a pilot to fly? You have asked them? Has he a lesson? Have you checked? सोया है कि जागा है, कभी पूछा है? नहीं. वी हैव अ ट्रस्ट दैट ही विल, जैसे पायलट और ये जहाज हमारे को पहुंचा देगा. हमें विश्वास सबके ऊपर है, भगवान के ऊपर नहीं, भगवान के शास्त्र के ऊपर नहीं. दिस इज आवर प्रॉब्लम. वी हैव अ ट्रस्ट ऑन एवरीथिंग. वी हैव अ फेथ ऑन एवरीबॉडी. Son has a faith on father. My father will maintain me, feed me. Wife has a faith. My husband will maintain me. But nobody has a faith that Krishna will maintain us. Nobody has a faith in the words of Krishna. भगवान के वचनों के ऊपर विश्वास नहीं. This is the problem of modern civilization. Therefore, Prabhupada started this love and trust feast to reawaken the love of the confused people and trust of the frustrated people on the Bhagavad Gita and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. बस ये बहुत सीधी सी बात है. श्रील प्रभुपाद चाहते थे लोगों का प्रेम कृष्ण के प्रति जागृत हो जाए और लोगों का विश्वास, जो परेशान है दुनिया में, दुखी हैं, उनका विश्वास भगवान श्री कृष्ण के वचनों के ऊपर. कृष्ण वाणी भगवत गीता है. भगवत वाणी भगवत गीता भगवान के वचन है. वो भगवान से अभिन्न है. इट इज सेपरेट. द वर्ड्स ऑफ द गॉड आर नॉन डिफरेंट देन गॉड. सो टुडे I would like to say something about Bhagavad Gita. In a preface to the teaching of Lord Chaitanya, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के भूमिका में in the beginning प्रभुपाद ने लिखा है, श्री चैतन्य महाप्रभु is Krishna himself. It is the evidence is in Bhagavatam, in Mahabharata, and in Bhagavad Gita. चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण भगवान है, वो भागवत में लिखा है, महाभारत में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है. आप में से कितने लोग चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं? जो नहीं जानते हैं वो हाथ ऊपर करें. कौन चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानता है? Who don't know चैतन्य महाप्रभु? नहीं जानते, हाथ ऊपर करो. सब जानते हैं? Everybody knows? This Krishna conscious movement is inaugurated by Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu is father of this movement. This congregation chanting of Hare Krishna Mahamantra, this Mahamantra is brought by Chaitanya Mahaprabhu from Goloka Dham
गोलोकेरा प्रेमादान हरि नाम संकीर्तन। दिस चैंटिंग ऑफ द होली नेम, ये भगवान के धाम से चैतन्य महाप्रभु धरती के ऊपर लाए हैं। सो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही जो कृष्ण प्रेम है वो मिलेगा। ओनली बाय द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु वी कैन गेट कृष्ण प्रेम। तो चैतन्य महाप्रभु को जानना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। एंड इन भागवतम इट इज सेड, मालूम है, वी नो इन भागवतम कृष्णा वर्णम त्वेषा कृष्ण सांग। सो दिस वर्स इज देयर। एक भागवत के 11th कैंटो में देयर इज अ वर्स, because Chaitanya Mahaprabhu is a Krishna. He don't have a Shama Varna. He don't have a blue color. He is in yellow color, but he is Krishna. महाभारत में भी है स्वर्णांगो हेम वर्णो, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। महाभारत में सहस्र नाम में, विष्णु सहस्र नाम में है, 1000 नेम ऑफ विष्णु जहां है। देयर इज आल्सो कोटेड चैतन्य महाप्रभु इज देयर। भगवत गीता में कहां है? व्हेन आई वाज रीडिंग आई थॉट वेयर इज इन भगवत गीता अबाउट चैतन्य महाप्रभु। सो भगवत गीता में चैतन्य महाप्रभु के बारे में है कि नहीं है? इज देयर एनी मेंशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु इन भगवत गीता? दैट वी विल डिस्कस टुडे। आपका क्या ख्याल है? कोई कुछ बोलेगा? Chaitanya, is there something, somebody can say something? Is there anything about Chaitanya Mahaprabhu in Bhagavad Gita? अच्छा, चैतन्य महाप्रभु कौन है पहले? Who is Chaitanya Mahaprabhu? Krishna in the mood of Radharani. Krishna in the mood of Radharani. And what is the major activity Chaitanya Mahaprabhu performed? Sankirtan, Harinam Sankirtan, right? Two things. It means in Bhagavad Gita there must be a verse which says there is a continuous kirtan and there must be mention of Radharani. भाई राधा रानी का नाम है भगवत गीता में कहीं? Srila Prabhupada said, I have established the Krishna conscious movement which is based on Bhagavad Gita as it is. ये संस्था, हरे कृष्ण संस्था, भगवत गीता के ऊपर आधारित है। और भगवत गीता में अगर राधा नहीं है तो चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव में है, और बिना राधा के कृष्ण की उपासना तो ब्रह्म की उपासना हो जाएगी। Without Radha, if you worship Krishna, it is like worshipping Brahm. ब्रह्म में शक्ति नहीं होती, ब्रह्म शक्तिहीन होता है। तो कहां है राधा? Remember today, there is a verse in 9th chapter of Bhagavad Gita. You repeat after me. Mahatmanastu mam Paratha Devim Prakritima Shrutaha Bhajatyananya Manaso Gyatva Mam Bhutadya Vyayam. In this verse, the Devim Prakritim, which means divine energy, Daivi Shakti, ये राधा रानी। सो भगवत गीता में इस श्लोक में 9वें अध्याय के राधा रानी का उल्लेख है। देयर इज ए मेंशन ऑफ राधा रानी, एंड श्रील प्रभुपाद हैज मेंशन्ड दिस इन नेक्टर ऑफ डिवोशन दैट देवी प्रकृति इज राधा रानी, एंड दोज हु टेक शेल्टर ऑफ देवी प्रकृति दे आर महात्मा। जो देवी राधा रानी का शरण लेते हैं वो महात्मा है। But every day we sing Guru Puja. What we say? Sri Guru Charana Padma. What is the meaning of Sri Guru? Shri. Shri means Radha Rani. The Guru is one who has taken shelter of lotus feet of Radha Rani. गुरु वो है जिसने राधा रानी के चरणों का शरण लिया है।
ये है इसका अर्थ। And Srila Prabhupada's father used to bring so many saintly people every day at home and feeding them sumptuous prasad, and then I'm begging them, please bless my son that he should become a devotee of Radharani. प्रभुपाद जी ये पिता बहुत सारे साधुओं को घर में भोजन करा के प्रार्थना करते थे, मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, राधा रानी का भक्त बने. All the gurus, they have a mercy of Radharani. They have taken shelter of the lotus feet of Radharani. And they are representative of Balaram. That's Balaram. Balahine nanlabhya. Those who have no shelter of Balaram will never find love of God. बलराम की कृपा के बगैर कृष्ण को नहीं पा सकते. बलराम आदि गुरु है, आचार्य है. सो राधा रानी का मेंशन कहां है भगवत गीता में? नाउ देवीम प्रकृतिम 9:13. अब राधा रानी के भाव में चेतना महाप्रभु या 14 श्लोक को पढ़ो. सततम कीर्तन यंतो माम यततंश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. This is the proof that Chaitanya Mahaprabhu, the one who was chanting all the time Hare Krishna Mahamantra, Satatam Kirtanayanto, always chanting the glories of the holy name. Krishna says, Mam, Krishna. Yatatan Dridvrtaha, he has taken the great woe. Sannyas 24 साल में ले लिया. It was 24 years and he took sannyas. Great woe, given up everything. Dridha Vrta. Dridha means strong. Vrta means woe. He is taking a strong woe of sannyas. And what he was doing? Doing Harinam Sankirtan. And who was he? He was in the mood of Radharani. So these two verses of Bhagavad Gita, they are very subtly and indirectly, बहुत सूक्ष्म रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से चेतना महाप्रभु का भगवद गीता में संकेत देती है. There is a mention of Radharani and Chaitanya Mahaprabhu in Bhagavad Gita. And therefore Prabhupada said our movement is based on Bhagavad Gita. And what is in our movement? Chanting Hare Krishna. And this chanting Hare Krishna is brought by Chaitanya Mahaprabhu. And it is and what is Hare Krishna mantra? Hare Krishna mantra क्या है? Hare Krishna mantra है राधारा तंत्र. What is Hare Krishna mantra? Radhara tantra. Radhara means Radharani ka, of Radharani. Tantra means the special method by which she control Krishna. Enchant Krishna. कृष्ण को आकर्षण करने वाली राधा रानी कृष्ण को कैसे आकर्षण करती है? हरे कृष्ण मंत्र वो काम करता है. ये गोलोक धाम से आया है. इट हैज कम फ्रॉम द गोलोकेर प्रेम धन. ये दुनिया का मंत्र नहीं है, ये वर्ड्स नहीं है. दे आर नॉट वर्ड्स. ये दुनिया के शब्द नहीं है. ये भगवत धाम के भगवान और भगवान की शक्ति का स्वरूप है. ये मंत्र हरे भगवान की शक्ति है, कृष्ण स्वयं भगवान और राम आनंद का सूचक है. अगर कोई भगवान की शक्ति देवी प्रकृति राधा रानी का शरण लेगा तो भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाएगा. लिखा है नेक्स्ट ऑफ डिवोशन में, इट इज मेंशन दैट डिवोशनल सर्विस इज कृष्ण आकर्षणी. The devotional service attract Krishna. And Srila Prabhupada said, Radharani is Krishna Akrishani. Radharani Krishna ko आकर्षण करती है. Radharani attracts Krishna, enchants Krishna. So if we chant Hare Krishna, we attract attention of Krishna. Krishna हमारी ओर देखेंगे. जो हरे कृष्ण जपेगा, श्री कृष्ण देखेगा मेरा नाम कौन ले रहा है, कौन भाग्यशाली है, कौन महात्मा है, कौन ग्रेट पर्सन है. So by chanting Hare Krishna we become dear to Krishna. By chanting Hare Krishna we become
वेरी डियर टू कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को प्रिय होना है तो हरे कृष्णा मंत्र जपना चाहिए। गीता के 2 और श्लोकों का आपको आज बात बताऊंगा। आई विल टेल यू 2 more verses from Gita. First verse I says, this is the injection of Gita. सह यज्ञ सृष्टा प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यदम इष्टवा इष्ट काम दुख। When Supreme Lord created this world, He created demigods, He created human beings, He created yajna, and then He instructed, perform this yajna and it will fulfill all your desires. भगवान ने यज्ञ की सृष्टि की, देवताओं की सृष्टि की, मानव की सृष्टि की और आदेश दिया यज्ञ करो, ये कामधेनु है, इष्ट काम दुख, आपकी सारी कामनाएं पूरी करेगा। अब आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, यू वांट टू गेट योर डिजायर फुलफिल, हाँ जी बोलिए, यू ऑल वांट, देन यू शुड डू यज्ञ। बिकॉज यज्ञ, भगवान ने कहा यज्ञ आप कामधेनु हैं, यज्ञ विल फुलफिल ऑल योर डिजायर्स। अब कौन सा यज्ञ करें? ये जो भारतीय बैठे हैं ना, इन्हें एक को यज्ञ समझते, दे ओनली नो वन यज्ञ। आग जलाओ, घी डालो, स्वाहा, ये यज्ञ सुना है। ये यज्ञ करना मुश्किल है। कल युग में ये यज्ञ नहीं, ये यज्ञ त्रेता युग में था। दिस प्रैक्टिस ऑफ यज्ञ वाज ऑफ त्रेता युग, नॉट ऑफ कल युग। ये यज्ञ करने के लिए घी कहां से लाओगे? घी गाय का घी नहीं मिलेगा, हाँ नहीं मिलेगा गाय का घी। शुद्ध मंत्र उच्चारण करने वाला पंडित नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट द प्रीस्ट हु कैन प्रोनाउंस द वैदिक मंत्र प्रॉपरली। तो फिर ये भगवान ने कैसे लिख दिया यज्ञ करो? सब करना चाहते, एवरीबडी वांट टू परफॉर्म यज्ञ। भगवत गीता में ही भगवान ने आगे लिखा, 10th चैप्टर में कृष्ण सेज, यज्ञानाम जप यज्ञास्मि, बोलिए यज्ञानाम, of all the type of yajna or sacrifice, I am jap yajna, chanting of the holy name. If you chant every day without fail on the beats the holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, you are performing यज्ञ। ये सबसे बड़ा यज्ञ है। There is no one penny expenditure, 1 रुपये का खर्चा नहीं है। You don't need घी, you don't need fire, कोई पंडित को बुलाना नहीं है, कुछ खर्चा नहीं है, फ्री का है। Everybody can perform this yajna. Every living entity must perform this yajna every day if he really wants to be happy and get his desire fulfilled. Then he must chant Hari Nam. And what is the other yajna which everybody can chant? That is the last verse of Srimad Bhagavatam. भागवतम का अंतिम श्लोक में एक महान यज्ञ लिखा हुआ है। बोलिए, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व पाप means all sinful activities which we have performed in many lifetimes. Pranashanam, प्रकृष्टेन रूपेण नाशनम means completely destroyed. अगर सारे पाप को सदा के लिए जड़ से भस्म करना चाहते हो, जला देना चाहते हो, तो ये यज्ञ करो। कौन सा? नाम संकीर्तन, भगवान का नाम साथ मिलकर गाना। जप अकेले को करना है। जप इज फॉर 1 person एंड संकीर्तन फॉर होल फैमिली। परिवार मिलके रोज घर में, every family every day sit in front of the photo or beauty of the Lord and chant Hare Krishna together. Big yajna, great yajna.
ऐसा यज्ञ है जिसका ऐसे लिखा है पद्म पुराण में, बड़े से बड़ा अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग में जाके वापस आ सकता है, लेकिन एक बार भगवान को प्रणाम करने वाला कभी वापस नहीं आएगा। वो सब यज्ञ एक तरफ और एक तरफ भगवान का नाम। ये सब यज्ञों से बड़ा यज्ञ। दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट सैक्रिफाइस, चैंटिंग ऑफ द होली नेम। गौकोटि दानम गिरणे च काशी, प्रयाग गंगा युत कल्पवास, यज्ञैश्च स्वर्णम मेरुदानम, गोविंद नाम नाम सुमरणे न तुल्य। गौ कोटि दानम, गौ कोटि, गो मीन्स काउ, कोटि मीन्स 1 million और 10 million, 10 million काउस दान करो। कहां? ग्रहणे च काशी, an eclipse, lunar eclipse, moon eclipse at Kashi, at the bank of river Ganga, बड़ी अच्छी जगह है। 10 million काउस दान करो, बहुत अच्छा दान है। प्रयाग गंगा युत कल्पवास, एट प्रयागराज where the 3 rivers meet, गंगा जमुना सरस्वती, वहां एक ब्रह्मा जी के दिन तक रहो, बहुत बड़ी तपस्या है। यज्ञैश्च स्वर्ण मेरु दानम, यज्ञ करो, मेरु पर्वत जितना सोना दान करो, ये सब अच्छा है। गोविंद नाम नाम सुमरणे न तुल्य, दे आर नॉट इक्वल टू चेंडिंग द नेम ऑफ गोविंद। ये सब काम भगवान के नाम के बराबर नहीं है। इसलिए भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। वी ऑल मस्ट चैंट, मस्ट चैंट, मस्ट चैंट द होली नेम। घर में जपना चाहिए। जिस घर में भगवान का नाम जपा जाता है वो घर वैकुंठ हो जाता है, वहां भगवान का निवास हो जाता है, वो तीर्थ हो जाता है। दैट बिकम ए होली प्लेस। और होली प्लेस का मतलब है पवित्र। होली, तीर्थ का मतलब पवित्र। सब दुख पाप नाश हो जाते हैं जिस घर में कीर्तन होता है। अगर आपके घर में कीर्तन नहीं होता है, या मंदिर के भक्तों को बुलाओ, इनवाइट द डिवोटीज फ्रॉम द टेम्पल टू डू कीर्तन इन योर हाउसेज। यहां मैंने कल्चर बहुत कम देखा है। भारत में मंदिरों से रोज किसी न किसी के घर में कीर्तन होता है, रोज किसी न किसी के घर में कीर्तन होता है। और अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे, आपके घर में कीर्तन है, आपके फ्रेंड आएंगे, आपके रिलेटिव आएंगे, तो आप सबसे बड़ा, if you then you are doing the greatest यज्ञ, most great social welfare work। इससे बड़ा और कोई समाज का कार्य नहीं हो सकता। सबसे बड़ा सोशल वर्क है, ग्रेटेस्ट सोशल वर्क है, कनेक्ट द कंफ्यूज पीपल विथ कृष्णा। ये याद करो, ये लाइन याद लिख लेना। द ग्रेटेस्ट सोशल वेलफेयर वर्क इज टू कनेक्ट कंफ्यूज पीपल विथ कृष्णा। दिस, जो व्यक्ति बिल्कुल परेशान है उनको परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से मिलाना सबसे बड़ा समाज सुधार का कार्य है। अच्छे से अच्छे, भले से भला कार्य ये है कि लोगों को भगवान से मिलाओ। आरती शुरू हो गई, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, 4:30 तक करना है। कोई क्वेश्चन आंसर पूछें या वी कैन कंटिन्यू दिस, और यू हैव एनी क्वेश्चन और कमेंट्स? सो आज हमने आपको पहले बताया ये संडे फीस्ट, प्रभुपाद ने 2 वर्ड यूज किए थे, लव एंड ट्रस्ट। सो हमें कृष्ण से प्रेम करना चाहिए और कृष्ण के वचनों के ऊपर विश्वास करना चाहिए। वी शुड अवेकन आवर लव ऑफ कृष्णा एंड डेवलप फेथ ऑन द वर्ड्स ऑफ कृष्णा, भगवत गीता। दिस इज first message which today we discussed. Second topic we discussed in Bhagavad Gita, there is mention of Chaitanya Mahaprabhu and Radharani.
Because without the Chaitanya Mahaprabhu's mercy and Radharani's mercy, we cannot become Krishna conscious. And when the movement is, जब हमारा movement is based on Bhagavad Gita, it must have that. So, देवी प्रकृति राधा रानी है, divine energy is Radha Rani, और सततम कीर्तन यंतो दृढ़ व्रता is Chaitanya Mahaprabhu. Once Prabhupada was asked by a newspaper reporter, every time you are chanting Hare Krishna and you are saying, you are basing your movement on Bhagavad Gita, where is a Kirtan in Bhagavad Gita? वो इसने ऐसा एक बार प्रश्न पूछा, प्रभुपाद हर सब जगह हरे कृष्णा जप रहे हो, गीता के ऊपर आप कहते हैं हमारा संस्था है, कहाँ है गीता में कीर्तन? प्रभुपाद कोटेड दिस वर्ड, सततम कीर्तन यंतो माम यततंस दृढ़व्रताः, लिखा है भगवत गीता में सदा कीर्तन करो, हम सदा कीर्तन करें। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्तन्य सदा हरि, कीर्तन्य सदा हरि, सदा हरि का कीर्तन करो। सो दूसरी बात हमने ये आज भगवत गीता से सीखी कि सदा, और तीसरी बात हमने भगवत गीता से सीखी, थर्ड थिंग वी हैव लर्न फ्रॉम भगवत गीता टुडे इज एवरीबडी हैज टू परफॉर्म यज्ञ। यज्ञ करना सबके लिए अनिवार्य है, यू कैनॉट अवॉइड इट, इज कंपल्सरी, कंपल्सरी एवरीबडी हैज टू परफॉर्म यज्ञ, सबको करना चाहिए यज्ञ। कौन सा यज्ञ करे? जप यज्ञ करो, माला लो, उसके ऊपर हरे कृष्णा मंत्र जपो, बड़े से बड़ा यज्ञ है। दिस यज्ञ एवरीबडी शुड परफॉर्म, चैंट हरे कृष्णा ऑन बीट्स। और दूसरा यज्ञ क्या करें परिवार के साथ? चैंट हरे कृष्णा। कांग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा इज another very powerful यज्ञ। और जो लोग भारतीय मूल के नहीं है, आपकी भाषा में हिंदू नहीं है, आप बाजार के अंदर कीर्तन करो, मार्केट में कीर्तन करो, उनके काम में कान में भी भगवान का नाम जाएगा और उनका भी भला होगा। और ऐसे ही प्रभुपाद ने इस मूवमेंट को पूरी दुनिया में गली गली में कीर्तन करके फैलाया। स्ट्रीट स्ट्रीट एवरीवेयर यू हैव टू चैंट हरे कृष्णा एवरी डे। ये रोज यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो, जप करो, जप करो, जप करो, कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन करो। और जिस घर में कीर्तन होता है वो घर भगवान का धाम, तीर्थ हो जाता है। वो तीर्थ है। गंगा, जब उस घर में गंगा जमुना सरस्वती सब आ जाती है। यहां लिखा है, गीता महात्म का श्लोक है, गीता भगवान के मुख से निकली है, गंगा भगवान के चरणों से निकली है। जो गंगा सबको पवित्र करती है चरणों से निकली है, तो गीता भगवान के मुख से निकली है, वो सबको पवित्र कर देगी। लिखा है, एक श्लोक है, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। रोज स्नान करते हैं, रोज एवरी डे वी टेक बैथ टू क्लीन अवर बॉडी। सकृत गीता अमृत स्नानम, एक बार गीता के अमृत का स्नान करो। ओनली वंस यू टेक बाथ विद द नेक्टर ऑफ द भगवद गीता, संसार मलनाशनम, देन द रिपीटेड बर्थ एंड डेथ विल स्टॉप फॉर एवर। जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो जाएगा, गीता के अमृत में स्नान कर लो। व्हाट यू आर डूइंग नाउ इज गेटिंग ए डिप इन ए नेक्टर ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता के अमृत में आप स्नान कर रहे हो, इसके अमृत के सागर में गोता लगा रहे हो, डुबकी लगा रहे हो। दिस इज व्हाट संडे फीस्ट इज। गीता अमृत में स्नान करना, टेकिंग बाथ इन द नेक्टर ऑफ भगवद गीता। गीता सुगीता किम नई शास्त्र विस्तरई। There's no need of any other scripture. Everything is in Bhagavad Gita. Yaswam mukh padam nabhasya, that is come from the lowest mouth of Sri Krishna. एक कंट्री में प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद विजिटेड सम कंट्री, बहुत बड़ी चर्चेस थी, बहुत पायस पीपल थे। Why you have come, स्वामी जी? प्रभुपाद with respect he said, you all are good pious people, आप भले आदमी हो, आप धार्मिक लोग हो, अच्छे लोग हो। बोले that is all right,
बट व्हाट इज योर मैसेज? ये ठीक है, आपका क्या संदेश है? प्रभुपाद ने कहा, आई हैव द मैसेज ऑफ मोस्ट अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर स्पोकन बाय गॉड हिमसेल्फ। मेरे पास प्रमाणिक भगवान की वाणी का संदेश है, डायरेक्टली स्पोकन बाय दी लॉर्ड्स माउथ ऑफ श्री कृष्णा। भगवान के मुख कमल से निकली हुई वाणी है, मोस्ट अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर है, प्रमाणिक शास्त्र है भगवत गीता। जिस घर में भगवत गीता नहीं, जिस घर में हरिनाम संकीर्तन नहीं, वो शमशान के समान है, वो शमशान के समान है। वहां मुर्दे रहते हैं, मरे हुए जीव रहते हैं। इसलिए हर घर में गीता होनी चाहिए और हर घर में भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हर घर में भगवत गीता, हर घर में कीर्तन, तो फिर आनंद ही आनंद है। फिर भगवान मिलेगा, नहीं तो शमशान। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? यू हैव एनी क्वेश्चन और कमेंट? यस प्रभु। हाँ, see, basically this scripture is only for human beings. शास्त्र मानव मात्र के लिए है, परंतु मछली का उद्धार प्रसाद दे के कर सकते हैं। आप उसको प्रसाद खिला दो, और एक दूसरा आपको एक एग्जांपल दूं, फिर ये बात लाइक एनिमल 4 लेग वाले हैं। यहाँ तो आपके देश में तो एनिमल है नहीं, एक कुत्ता घूमता है बस, है, और तो कुछ है नहीं। वो किला वाला कुत्ता है, 5 किला वाला कुत्ता। बिल्ली कुत्ता 4 पांव वाले हैं, गाड़ी भी 4 पांव वाली है, तो उसको कोई स्टैंड नहीं चाहिए। स्टैंड नहीं चाहिए ना उसको। अगर साइकिल है, स्कूटर है, तो स्टैंड होता है ना, तो 2 व्हीलर को स्टैंड चाहिए, 4 व्हीलर को स्टैंड नहीं चाहिए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हम 2 व्हीलर हैं, 2 पांव वाले हैं, हमें सत्संग का स्टैंड चाहिए, नहीं तो गिर जाएंगे। ये स्टैंड बहुत जरूरी है। और सत्संग में आके स्टैंड नहीं लोगे तो 4 पहिए वाले की तरह पशु हो जाओगे। Really, you are not coming for satsang. So basically this sankirtan is for human beings. Other living entities, Mahaprabhu says there are innumerable living entities. Half are not moving, leave them. And those which are moving, some are in the sky, some are in the ocean, some are on the land. Forget the sky, forget the ocean. On the land, among all living entities, the smallest number is human being. And for this human being, half are completely non-believer. They never believe in God. उसको भी छोड़ो। जो बिलीवर है गॉड में, उनमें भी 10 मिलियंस में कोई एक होता है जो कहता है मैं भगवान को जानता हूं, कर्म करता हूं। ऐसे 10 मिलियन कर्म करते हैं, उसमें एक ज्ञानी होता है। 10 मिलियन ज्ञानियों में एक मुक्त होता है। 10 मिलियन मुक्त में एक कृष्ण भक्त होता है। हाउ रेयर इज कृष्ण भक्त? कृष्ण भक्त इज वेरी रेयर। आप भाग्यशाली हो कि कृष्ण भक्ति आपको इस आइलैंड में, प्रभुपाद यहाँ इस आइलैंड में 2 बार आए और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने, सर राम गुलाम ने स्वयं इन्विटेशन देकर बुलाया था। और प्रभुपाद इस आइलैंड को पहला कृष्ण कॉन्शियस कंट्री बनाना चाहते थे, दुनिया के लिए एग्जाम्पल बनाना चाहते थे। आप बहुत देर कर रहे हो, यू आर वेरी लेट।
This island should be first Krishna. एक ये और एक फिजी और मॉरिशस दो के लिए प्रभुपाद ने कहा they should be the first Krishna conscious country on the globe. दुनिया में इन दो को कृष्ण कॉन्शियस देश बनना चाहिए. देर हो गई, जल्दी करो. हर घर में गीता, हर घर में हरे कृष्णा, हर घर में राम नाम होना चाहिए हर घर में. So basically all living entities have a love of God in their heart. But those who are in a lower species, they are not conscious of that. They have only two desires. Where is the food to eat and where to take rest? They have only two things. It's live a lower species, there's only two consciousness. They don't know future. They know where's food and where to rest. Human being is only one who has developed consciousness, but there's a one problem. Even if he is suffering, he will say, I am happy. This is a problem of the human. दुखी है समझेगा मैं सुखी हूँ, ये मानव की पहचान है. लिखा है भागवत में. दुखी है फिर भी समझेगा मैं सुखी हूँ, कहेगा मैं सुखी हूँ. This is a illusion of the living entity. इसी को ठीक करना है तो कृष्ण भावना का प्रचार करना चाहिए. Any other question or comment? हाँ, ये हमारा राम हुआ. हाँ, राम विजय प्रभु बोलिए. राम विजय जी. Bring the confused people to Krishna consciousness is the best welfare work on the planet. And the best way, Prabhupada said, I brought all the hippie confused people by doing two things. Sweetly chanting Hare Krishna and distributing prasad. Prabhupada used this method, which method is still very powerful. You just do two things, chant Hare Krishna and distribute prasad, you can make the whole island Krishna conscious. हरे कृष्णा. कुछ नहीं करना है, हरे कृष्णा जपना है, प्रसाद बांटना है, बहुत अच्छा हो जाएगा. हरे कृष्णा. Chant Hare Krishna and distribute prasad. Confused people become Krishna conscious. Srila Prabhupada ki jai. Yes. Or today